Good morning, everyone. Welcome you all. So today we are going to discuss about the origin and the soil profile and the classification of the soil. In last video we have discussed about the definition of the soil and few factors that are responsible in the formation of the soil. Okay, and today we are going to discuss about the origins of the soil and soil profile. What is soil profile and classification of the soil. Okay, so let's start the topic. First one is the origin of the soil. So this is the definition. In the vertical cross section of the soil present a arranged layer of the soil that is known as the origin. Suppose that this is the वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल. ओके, सोइल का ये क्या है, एक वर्टिकल सेक्शन है. दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल एंड हियर वी हैव few layers, for example this. So here we have 4 layer. In first layer, or this is the top layer. Okay, this is the top layer. In this layer, this is the proper soil, which is the uppermost part of the crust. Okay, and here we have organic materials. Plus organic materials and minerals. So this is the proper soil which support the. Okay, and the second, this is horizon A. Second layer is the transition layer, and this is horizon B, and here we have loose rock matter, and this is horizon C, and this is parent rock. This is parent rock, and this is horizon D. So these are the horizontal layer which are present in the vertical section of the soil, and in a complete manner this is known as soil profile. Okay, this is known as the soil profile. So these are the horizons which are available in the soil. This is the topmost layer of the soil. Here we have organic material and minerals which support the plant life, horizon A. This is a transition layer from where the loose rock particles convert into the proper soil. So this is transition layer. This is second layer known as horizon B, and third one is the loose rock particles. This is horizon C, and this is parent rock which are responsible for these minerals. Okay, and which is responsible for the formation of this particular soil. Okay, so this is the as a complete this complete layer. Okay, this complete formation, this complete vertical section is known as the soil profile. Next जो हमारा टॉपिक होगा, that is classification of the soil. So let's start the topic. Okay, our next topic is the classification of the soil. So India has various type of the soil just because due to the climate variation in the climatic condition, relief features, topography and vegetation. So there is a change in soil variety in India. So in ancient time we have only two type of the soil, or soil can be classified into two types. First one is the urvara and second is the usar. Okay, so urvara, it means fertile. उर्वरा किसको बोलते थे, बोलते हैं ये उर्वर लैंड है. ठीक है, सो उर्वरा का मतलब ये हुआ कि फर्टाइल, और जो आपका
जो ऊसर जो लैंड होती थी उसको बोलते थे स्टेराइल। क्या बोलते थे? स्टेराइल। सो एंशिएंट टाइम में जो क्लासिफिकेशन था नहीं, कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था एक्चुअली। सो वी हैव टू टाइप ऑफ द सॉइल, फर्स्ट वन इज द उर्वरा एंड सेकंड इज ऊसरा। सो फर्टाइल उर्वरा एंड ऊसर जो होता था उसको बोलते थे स्टेराइल। ओके, जो इनफर्टाइल होती थी, अनेबल टू प्रोड्यूस। स्टेराइल क्या होता है? स्टेराइल किसको बोलते हैं? अनेबल टू प्रोड्यूस। क्लियर? देन लेटर ऑन द सॉइल वाज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर एंड द साइज। उसके बाद में जैसे जैसे साइंटिफिक कुछ स्टडीज़ होती हैं इन द सॉइल, सो उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। इन द सॉइल टेक्सचर और उसके साइज़ के बेस पे भी डिवाइड की जाती है। जो उसकी टेक्सचर और साइज़ बेस पे सॉइल डिवाइड की जाती है, उसमें ये 4 to 5 आपको टाइप दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज़ द क्ले। कुछ वर्ड आप सुनते होंगे सॉइल की जब स्टडी करते हैं। सो दिस सॉइल इन क्लेई इन नेचर, दिस सॉइल इन सिल्टी इन नेचर एंड दिस सॉइल इज सैंडी सॉइल। ओके, तो सैंडी सॉइल, सिल्टी नेचर, क्लेई नेचर, ये क्या होता है? ये उसका जो ग्रेन्स हैं, सॉइल के जो ग्रेन्स हैं उनकी साइज होती है। सो क्लेई जो नेचर की जो सॉइल होगी या क्ले जो होगा उसकी जो साइज होगी वो 0.002 mm, ठीक है, mm मिलीमीटर में होता है, ठीक है। तो 0.002 mm, ठीक है। इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा? सिल्ट होगा। जो सिल्ट होती है उसकी साइज होती है 0.002 mm से 0.05 mm, ठीक है। तो सिल्ट क्या है? क्ले से, देखिए इधर, क्ले के ग्रेन्स स्मॉल होते हैं और सिल्ट के ग्रेन्स जो होते हैं कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सिल्ट, क्ले जो है 0.002 mm एंड सिल्ट 0.002 mm टू 0.05 mm। उसके बाद में सैंड है, उसके ग्रेन्स होते हैं सैंड के ग्रेन्स कितने होते हैं? सैंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, फाइन सैंड ग्रेन्स एंड कोर्स सैंड ग्रेन्स। तो फाइन जो होते हैं वो 0.05 से 0.2 mm तक के होते हैं, ठीक है। और ये वाले जो होते हैं कोर्स जो होते हैं वो 0.2 mm से 2.0 mm तक के होते हैं। तो आप इसको ये वाली जो ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि इनकी जो एवरेज जो है 0.05 टू 0.2 mm, ठीक है। ये उसके बाद में लास्ट जो है ग्रेवल्स एंड पेबल्स का है, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेवल्स और पेबल्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज 2.0 mm एंड मोर, ठीक है। और इससे बड़े जो ग्रेन्स होंगे वो ग्रेवल्स एंड पेबल्स के अंडर आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से लॉम, ठीक है, लोमी सॉइल जो होती है, ठीक है, वो मिक्सचर होती है। जितने भी सिल्ट, क्ले या सैंड या पेबल्स या ग्रेवल्स होती है, इनका एक मिक्सचर, एक सॉइल होती है जिसमें मिक्स वेराइटी मिलती है, उसको हम बोलते हैं लोमी सॉइल, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोमी सॉइल उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कलर बेस पे भी इसका डिवीजन किया गया सॉइल को। तो कलर के बेस पे क्या किया गया? कलर के बेस पे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, ठीक है, रेड, ब्लैक, येलो एटसेट्रा। तो ये डिवीजन भी सॉइल का देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो दिया है सॉइल का वो USDA ने दिया, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। किसने दिया है? USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, USDA, ठीक है। इन्होंने जो बताया है वो टोटल 8 कैटेगरी बताई है सॉइल की। कितनी कैटेगरी बताई है? 8 कैटेगरीज बताई है, जिसमें एंटीसोल, जिसके अंदर इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, मोलिसोल, रेडिसोल, ठीक है, उल्टीसोल एंड अदर, ठीक है। ये टोटल 8 कैटेगरीज बताई हैं, जिसमें इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल,
एरिडी सोल। तो ये जो नेम गिवन है आपको, ये यूएसडीए डिपार्टमेंट ने जो साइंटिफिक नेम बताए हैं सॉइल के, वो आपको बताए हुए हैं। इंडिया के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किया है। किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, उसी के बेस पे इंडिया के अंदर भी जो सॉइल है उसको क्लासीफाई किया गया है इनटू 8 कैटेगरीज। इंडिया के अंदर जो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, ये स्टेब्लिश किया गया था 1956 में। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया 1956 में स्टेब्लिश किया गया था। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने इंडिया के अंदर सॉइल जो है उसको क्लासीफाई किया है इनटू 8 कैटेगरीज। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने टोटल 8 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया है, जिसके अंदर ये ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, साइज, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और टेक्सचर, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है। तो उसमें 8 कैटेगरीज निकल के सामने आती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज एल्यूवियल सॉइल, सेकंड ब्लैक सॉइल, थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल, थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल। फोर्थ कैटेगरी जो आपको नजर आ रही है वो है लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल, देन एरिड सॉइल, okay, sixth soil is peat soil, then seventh category is saline soil, and in last 8th soil type is forest soil, okay. So these are the name of the Indian soils which are classified by which are given by the ICAR, Indian Council of Agriculture Research. There are 8 variety of the soil in India which we will discuss in this chapter. First one is the alluvial soil, लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर जो मिल रही है, ऑलमोस्ट 43% एरिया कवर किए हुए है एलुवियल सॉइल। देन उसके बाद में ब्लैक सॉइल, देन रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, peat soil, saline soil and the forest soil, okay. So from tomorrow, from the next video we will discuss or we will start the characteristics of alluvial soil, okay. तो जो भी इंडियन क्लासिफिकेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे, सोइल का, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप अभी तक आपको जो मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर बताया वो कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमने देखा, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने स्टार्टिंग में देखा कि एंशिएंट टाइम में सिर्फ 2 ही कैटेगरी हमने सॉइल की डिवाइड कर रखी थी, दैट इज उर्वरा एंड ऊसर, ठीक है। उर्वरा इज फर्टाइल एंड ऊसर इज स्टेराइल विच इज नॉट फर्टाइल, ओके। तो उर्वरा एंड ऊसर। देन उसके बाद में हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर एंड द साइज वी हैव डिवाइडेड सॉइल इन मैनी टाइप, फॉर एग्जाम्पल क्ले, ओके, 0.000, 0.002
mm जो साइज़ मैंने आपको बताई थी वो क्ले की साइज़ बताई थी। उसके बाद में क्ले है, इसी के अंदर में हमने सैंड को भी देखा, सिल्ट, क्ले के बाद में सिल्ट, सिल्ट के बाद में मैंने आपको बताया था सैंड, देन ग्रेवल्स एंड पेबल्स, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बताया था लोमी, जिसके अंदर सभी सॉइल का मिक्सचर होता है, वो दैट इज़ लोमी सॉइल। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद में मैंने कलर के बेस पे बताया था, तो कलर बेस पे रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो ये जो भी क्लासिफिकेशन मिलता है कलर नेम से, तो दैट इज ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। नेक्स्ट हमने देखा था यूएसडीए का क्लासिफिकेशन, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसने जो क्लासिफिकेशन दिया है सॉइल का, जिसके अंदर इंसेप्टी सॉइल, जो एंटी सॉइल है, वर्टी सॉइल है, ठीक है, और एल्फी सॉइल है, मॉली सॉइल है। तो ये कुछ जो साइंटिफिक नेम गिवन है बाय द यूएसडीए, उसी के बेस पे, ठीक है, उसी यूएसडीए का जो क्लासिफिकेशन है उसी के बेस पे इंडिया ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, आईसीएआर ने दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया का भी इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, ध्यान रखना है आपको। आईसीएआर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसमें 8 कैटेगरीज में इंडियन सॉइल को डिवाइड किया, जो आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम एलुवियल सॉइल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।